We are indeed fortunate to have with us today Hafiz ji, Father Dominic Adams, Granthi ji, and also Pandit ji, who will conduct respective religious proceedings in a short while. Our presence at this occasion testifies the fact that we all believe unanimously in God being one, and that a religion is only one of the ways of worshipping the Almighty. There is an Indian concept of Sarva Dharma Samabhava, which embodies the equality of all the religions. This concept has been embraced and endorsed widely by Indian armed forces and by Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekananda, as well as Mahatma Gandhi. We should strive to emulate them. A religion is an organized collection of beliefs, cultural systems, and worldviews that relate humanity to an order of existence. Now, may I request Hafiz ji to come forward and start religious proceedings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو عليه ورحمة الرحمن. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. पाक परदिगार आलम मैंने जो चारों कुल पढ़ा
और सूरह यासीन की तिलावत की। पाक परदिगार आलम सूरह यासीन की तिलावत करने में, चारों कुल पढ़ने में कोई किस्म की लफ्ज़न, सोबन, मानन, कसदन, आमदन गलती हुई हो तो तेरे हबीब के सदक़े से माफ़ अता फरमा, और इसका सवाब तेरी बारगाह समदियत में पेश को कबूला मकबूल अता फरमा। पाक परदिगार आलम तेरे बारगाह में पहुँचते हुए पाक परदिगार आलम तमाम नबीन, तमाम रसूल जाम, तमाम सिद्दीकीन, तमाम शोहदा, तमाम हुजूर के अहल बद का तहार बनाते तैयबात, तमाम खुलफा राशिदीन के बारगाह में पेश को कबूला मकबूल अता फरमा। पाक परदिगार आलम समूह के बारगाह में पहुँचते बिलखुसूस तमाम औलिया किराम, बिलखुसूस बड़े पीर गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बारगाह में पेश को कबूला मकबूल अता फरमा। पाक परदिगार आलम समूह के बारगाह में पहुँचते पाक परदिगार आलम कुल मोमिनीन, कुल मोमिनात, कुल मुस्लिमीन, कुल मुस्लिमात के बारगाह में पेश को कबूला मकबूल अता फरमा। पाक परदिगार आलम आज की इस महफिल सजाने की पाक परदिगार आलम ख़ास बिलखुसूस यहाँ पे जितने भी लड़का लड़की और जितने भी पाक मर्द औरत पाक परदिगार आलम यहाँ पे जमा हुई हैं, सबों के मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। पाक परदिगार आलम जिस नियत से पाक परदिगार आलम यहाँ पे बैठे हैं, पाक परदिगार आलम सबों के मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। पाक परदिगार आलम सबों के उम्र में बरकत अता फरमा। पाक परदिगार आलम इन लोगों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमा। पाक परदिगार आलम ख़ास बिलखुसूस इन लोग जो जिस पाक परदिगार आलम किसी न किसी जिस चीज़ के पाक परदिगार आलम मकसद में लेकर बैठे हैं, पाक परदिगार आलम सबों के मकसद में कामयाब कामरान अता फरमा। पाक परदिगार आलम यहाँ पे जितने भी हाजिरीन बैठे हैं, पाक परदिगार आलम सबों की नियत में पाक परदिगार जिस नियत से लेकर बैठे हैं, पाक परदिगार आलम उनकी नियत में कामयाब कामरान अता फरमा। पाक परदिगार आलम इस कॉलेज को पाक परदिगार आलम ज़मीनी आसमानी बलैया से महफूज मामूल अता फरमा। पाक परदिगार आलम हम लोगों को इतना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमा। पाक परदिगार आलम यहाँ पे बैठने वाले पाक परदिगार को कोई किस्म की परेशानी है तो परेशानी को दूर अता फरमा। पाक परदिगार आलम ख़ास बिलखुसूस हम लोगों में से अगर कोई इस दुनिया से गुजर चुके पाक परदिगार आलम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अता फरमा। पाक परदिगार आलम ख़ास बिलखुसूस हम लोगों के रोज़ी रिज़्क़ में हम लोग की उम्र में बरकत अता फरमा। पाक परदिगार आलम हम लोगों को हलाल रिज़्क़ खाने और कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना नकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Gain success in our endeavors. Now, I request Father Dominic Adams to bless us and continue with the ceremony. In the introduction, you very well mentioned that religion is a way of attaining the goal of being one with God. And that is what religion is. And I'm happy to be here the second time. Last year also it's here. And it is not religion that divides us, but rather religion unites us, not with ourselves, but rather unites us with the Almighty God. We all believe that God is one, but yes, God is one, and when God is one, our way of relating to Him is different. We have our different ways of worshipping Him, different ways of acknowledging the greatness that He is our Lord and God. As you have gathered here this morning, I will ask you to take a comfortable posture. Probably leave all that you have in your hand or disturbing yourself. Close your eyes for a moment. As we all know that we are in the presence of the Lord, continue to feel His presence. Continue to experience the cool breeze that He has given us, the sounds that we have all around us. In a special way, we thank Him for what we are. We believe that God is the one who has created each and every one of us. He is the one who gives us life. He has created us in His own image and likeness.
Let us continue to praise and thank Him for our own parents, that the parents who have worked, toiled hard for us to bring us to this stage, for our brothers and sisters, for all our near and dear ones, especially our friends, and continue to be in the presence of the Lord as I read this text for you. From the Gospel of John, Jesus says to his disciples, "If anyone comes to me, I will not turn him away, but rather make a home in him. For where I am, the Father is also there. Whoever has seen me has seen the Father." The word of God. Those who are Catholics, let us say the prayer that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Let us pray. Almighty ever-living Father, we trust and believe in you, that you have created each and every one of us, that you are our creator, our ruler, our sustainer. Fill us with your grace, that each and every moment of our lives we may continue to praise and glorify you, and be your true instruments in this world to bring about peace, harmony, and justice. We make this prayer in the name of the Holy Father. Amen. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾਲੀ ਵਿਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੈ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸੈਨ ਸੈਨ ਪਾਨ ਲੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਬ ਕੂਰੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮ ਤੁਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਪਵਾਈਐ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਸਤਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਦਨ ਇਨਸਾਨ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਚਾਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰਤਨ ਖੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥਿ ਨਾ ਆਵੇ ਟੂਟ ਕਤ ਕਤ ਕਤੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹਉ ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਆਖਿਆ ਪਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਿਤਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਨ ਬੋਲੀਐ ਜਿਸ ਸੁਨ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵੈ ਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖਿਆ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਾਰ ਸੋ ਖਲਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਂਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸੁਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੁਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜਿਹੋ ਜਨ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਨ ਕਥ ਨ ਜਾਈ
ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਾਸਈ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਉ ਬਾਦ ਬਿਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਰਸਾ, ਪੂਰਨ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਖ ਸਭੇ ਤੁਮ ਕਹਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪੁਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਸਾਨਿਧ ਕਰਦਾ ਘੜੀਐ, ਸਭ ਨੁਕਵਾ ਸੰਗਰੀਐ, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें साठ कोई अवना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप दे मुझे बरिया, मरण काल का त्रासन वरिया, पूजो सदा हमारे पश्चा, सिर तुझ करियो रस्सा। राख लो मोरा खनहारे, साहेब संत सह प्यारे, दीन बंधुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुष्कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुमासा। जमन काल जुग सब कियो, वेदरा ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार तह हमारा। जमन काल से व्यक्त बनाओ, देवदान सुन पजाओ, आदंते के अवतारा। सोई गुरु समझी हमारा, नम से काथी सी को हमारी, सकल प्रजा जनाब सवारी। सेवकन को सेवकुन सुख दियो, सतन को पलमो बंद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पसांत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्कार फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पसाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद कर करा करतारा, बरजा तरतब देह अपारा। जब कर कर तो कबूं, तुम मिलत दे तर सबूं। जेते बदन सिर सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सभी तेरा तनरालम, जान तबेद पे दयालम। निरंकार निर्विकार न लंब, आद नीला नाद संभ। तां का मूर झत पेदा, जाको भेव न पावत बेदा। तां को कर हनुमानत, महामूर्ख पेद न जानत। महादेव को कै सदा शिव, निरंकार का चिंतन भेव। आप अपनी बुद्ध है जेते, भन्नत पिन पिन तेते। तुमरा लखा न जाय पुसारा, हे विदसा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्योराक विपूपा। अंडज रसे किनी, उत बुझ खान बहु राजिनी। कौं फूल रधा बैठा, कौं सिमट भयो संगर काठा। सगरी सिर दिखाया चांबवा, आ जुगा स्वरूप स्वंभव। अब रस्सा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगारो। दुष्ट जित रूपाता, सकल मलेश करो रन काता। जिया तू तब सन्नी पराय, तिनका दुष्ट दुखता मराय। पुरख जन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल कुक बार ते आए है, तां के काल निकटन आया है। रस्सा होय तां सब काला, दुष्ट अरिष्ट काला। कृपा दृष्टन जान हार्यो, तां के ताप तन को मार्यो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट साहस सकी न कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फाज ताहि उबारा। जिन्ना नाम तिहारो कहा, दारिद्र दुष्ट दो तेरा। करके तुम्हें सन तिहारे, आप हादे लिहो बारे। सर्व ठौर मोह सहाय, दुष्ट दो तेले हो बचाई सवैया। पाहे गए जब ते तुम रह, तब ते को वक्त रे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक अहमद एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबे बहाओ, वेद कह मिक न जान्यो। सीरियस पान कृपा तुमरी, कर मैं न कहो सब तो बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को साढ़ कहो तुहारो द्वार। बाहे गए के लाज अस, गोविंद दास तुहार दोहरा। सगल द्वार को साढ़ कहो तुहारो द्वार। बाहे गए के लाजस, गोविंद दास तुहार। आनंद सह राम कली महला तीजा, नांद के ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सह सिति, मन वधियां वधाइयां। राग रतन परिवार परियां, शब्द गावने आईयां। सब तो तां गाव होरी केरा, मन जिनी वसाया। आहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरा। दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा। कार्य सब सवारना, सबना गला समरा स्वामी। सो कमनो विसारे,
ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਾਏ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਸੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਰਾਏ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੀ ਸਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵੇਟਾਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਹਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਦਿਨ ਕਾਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵੈ ਸੂਰੈ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੈ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਹੈ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਬਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ ਖੇਤੀ ਸੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ ਖੇਤੀ ਸੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈਰਦਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਗ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨ ਹੁਣ ਦਿਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਸੇਖਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਨਰਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਪਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤੁ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਧਾਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਵਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚੀਤੇ ਆਵੈ ਚੀਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਾਇਤ ਦੇਖ ਤੇਕ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਭਵਿਖ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ
ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪਰਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦੇ ਉਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੋ ਜਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਰ ਜਿਰ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਿਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਇਆਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਮਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ IIEBM ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਹਰ ਮਰਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। IIEBM ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੁਦਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੁਖੋਂ ਜਪੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਹਰ ਮਰਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮਰਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਟਾਫ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਜੋ ਦਰਾਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਵੈ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾ ਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। Perfect ambience for devotion, meditation and piousness. अब मैं बुलाना चाहूँगा पंडित जी को। पंडित जी। आर्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव स्वस्ति स्तुर्या विना साक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिजा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पौमानं महीते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं षट्संवत्सरं दीर्घमायुः सुखिनो भवन्तु यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं बलहते न त्वामभिवदनामि रक्षेमाचलमाचल स्वस्ते कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु। गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो में तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सचिपुरन्द्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। पाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तत्कर्ण प्रधान देवता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ते कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु अभिवृद्धिमस्तु। हरि ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधेखु जगमयः अग्निर्जिह्वः मनवः सूरचक्षसो विश्व
ध्यारीरिकतायुर्गन्तो अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्ष मदितिः माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा ॐ दीर्घाय जुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रास्याय सहसा अथो जीव सरदः सतं मा हरि ओम ॐ देहुः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवसु शान्तिर्भवतु जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करो तावत तुम सुस्थिरो भव। फेंक दो यहाँ, दीपक को प्रणाम करो। दीपक हाँ वहीं नीचे के रख दो, दीपक को प्रणाम करो हाथ जोड़ के। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृतं त्वंच धारय माम नित्यं पवित्रं कुरुशासनम। छोड़ दो यहाँ, पृथ्वी को प्रणाम करो। ओम भूर्भुवस्व भो गणपतिः गच्छ तिष्ठ मत्कृतां मां पूजां गृहाण यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानेति कश्चन सशस्तश्वकः काम्पीलवासिनीम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ओम भूर्भुवस्वः भो गौर्यै गच्छ तिष्ठ मत्कृतां मां पूजां गृहाण यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारमेव श्रोतारमेव दातारमेव धातारम् अवानुचानमो शिष्यमेव पश्चात्तातयो पुरस्तातयो उत्तरात्तातयो दक्षिणात्तातयो चोर्धात्तात बाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायेन्दुलस्त्यम्। तारेण रिद्धम एतत्तो मनुष्य रूपम गकारः पूर्व रूपम कारो मध्यम रूपम अनुस्वार शांति रूपम बिंदु उत्तर रूपम नादा संधानम संहिता संधि सैसा गणेश विद्या गणकृषि निश्चित गायत्री छंदः गणपतिर्देवताओं गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबासं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः स्पूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतमयाविर्भूतं च शिष्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति जो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोदराय गदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम सहस्रीर्खा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिग्भुं सर्वतः तिष्ठद्दशाङ्गुलं। जल से स्नान दोनों को यहाँ रखो सब। हरि ओम मनोज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं सम्यन् धासु विश्वे देवासि हिमाद्यन्ताम् ओम प्रतिष्ठो भव। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। चंदनं समर्पयामि श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रेक्षताम चंदनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं नित्यं वस्ते लक्ष्मी आयु वर्धति सर्वदा। श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं समगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं बुधाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुमुखाञ्च सन्निभं बुद्धिर्भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं बृहस्पतये नमः। हिमकुन्द मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शनिश्चराय नमः। अर्धकालं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं राहवे नमः। पलाश पुष्पसंकाशं तारका
यहा गच्छै तिष्ठम कृतां मां पूजां गृहाण यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। पूरा छोड़ दो चावल। वेदो ह्यथर्वणा अंगैश्च संहिता सर्वे कलशेतु समासिताः। ओम गंगा सरस्वती रेवा पुरुषी नर्मदा जलैः स्नापितोष्मया देवातः शांतिं प्रियक्ष्मे। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवस्सुवः भो वरुणाद्या वाहित देवता अस्मिन् कलशे ह्यः गच्छै तिष्ठं कृताम् लक्ष्मी स्पत्न्या होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तं निखाणा मुम्मयि खाणा सर्वलोकमयि खाणा हरि ओम। ओम मनोज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं सम्यन्धासु विश्वे देवासि मादयन्तामों प्रतिष्ठो भव। ओम भूर्भुवस्सुवः भो वरुणाद्या वाहित देवता ह्यः गच्छै तिष्ठं कृतां मां पूजां गृहाण यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। वहाँ भी कलश नवग्रह के ऊपर भी 4 बार। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिष्ठिताम। चन्दनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं नित्यं वस्ते लक्ष्मी आयु वर्ध सर्वदा। अक्षतं समर्पयामि यक्षन्नमीं दन्तुवप्रिया धूकशोकशभानो विप्रान् विष्ठ्यामति योजान्विन्दते हरि। स्वस्तु स्तुर्या विना साक्षात् धर्मकल्याण विधिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दक्षीरघृतानि च आहारं भक्षे भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ह्रीं प्रब्रह्मणे नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि। छोड़ दीजिए फूल पे। एक ही है, सत्य कभी दो नहीं हो सकता। और सत्य नारायण, नर मतलब कि नर और अयन। अयन मतलब होता है घर, मनुष्य का घर जैसे समझ लो, या मनुष्य के आश्रय समझ लो। ये कथा जो है मनुष्य के लिए एक आश्रय है, विश्राम शांति देने वाला स्थान है। इसीलिए इसका जो है नाम ही पड़ा है कि सत्यनारायण कथा जो है। यह कथा खास करके 4 युग होते हैं, सतयुग और द्वापर त्रेता कलयुग, ये 7 युग हैं, 4 युग हैं। ये खास करके ये कथा जितनी भी बनी है कलयुग के प्राणियों के लिए बनी है। और यह कथा भी जो ली गई है ये छोटी किताब देखने में लगती है, पर ये कथा अगाध है, समुद्र की तरह, जैसे समुद्र जल से परिपूरित है। वेदव्यास जी ने जो 18 पुराण बनाए हैं ये आप सबको पता होगा। 18 पुराण की रचना में एक पुराण आता है उनका स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण बहुत पत्राकार मोटी सी किताब है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का आजकल ज़्यादा तीर्थ है। नैमिष उसका नाम था और अरण्य माने जंगल, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया नैमिषारण्य। और एक समय जबकि ये कथा थी वो बहुत बड़ा जंगल था, और हमारे ऋषियों मुनियों का यह नियम था कि वो गांव देश से बहुत दूरी पे रहते थे, क्योंकि उनको इस शोर शराबा पसंद नहीं था। उनका काम ही यह था कि भगवान के विषय में चर्चा करना। भगवान क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, शिव क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, विष्णुलोक क्या है, शिवलोक क्या है, और बाकी लोग इतने हैं, मृत्यु लोक हैं, सुतल हैं, ततल हैं, बितल हैं, पाताल लोक हैं। ये सब लोग क्या हैं, कैसे बने, इनकी रचना क्यों हुई, कोई वस्तु अगर है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य है, उसका कहीं न कहीं सदुपयोग होना है। ये सब चीज़ों पर वो चर्चा करते रहते थे, होते थे। और सब नीचे बैठे हुए थे। सूत जी महाराज के लिए उच्चासन दिया गया था उनको ऊपर बैठने का। उस दिन उन लोगों ने सूत जी महाराज से यह प्रश्न किया, कहते हैं कि यह कथा नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं, कथा तो संसार में आने के बाद ये बन गई, पर उस समय जिस समय यह पूछा गया था
तो सूत ऋषियों ने यही प्रश्न किया था सूत जी महाराज से कि व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते फलम, कथा से नहीं बल्कि व्रतेन कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सी ऐसी तपस्या है जिसको करने से मनुष्य तत्काल दुखों से छुटकारा पा जाएगा। यह व्रत उनका प्रश्न था कि व्रतेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितम फलम, और मनुष्य समस्त दुखों से छुटकारा पा करके अपने वांछित फल को प्राप्त हो जाएगा। यह सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया था ऋषियों ने। तो सूत जी ने कहा कि आप लोगों ने यह जो प्रश्न किया है लोक हितार्थ जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी इस विषय को पूछने के लिए विष्णु भगवान के पास क्यों गए थे और कब गए थे? नारद जी को यह श्राप ही मिला था कि आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। तो नारद जी इनको भगवान ने श्राप दिया था। भगवान किसी को श्राप नहीं देते, किसी को मारते नहीं, पर उसकी गलतियों का जो है एहसास कराते हैं। लगाए रहते थे जो है। और एक बार इन्होंने ऐसा इनके पास समस्या आई तो इन्होंने, हमने ये कथा काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हमने कहा, उन्होंने विष्णु भगवान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैंने कामदेव को जीत लिया हूँ। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए इनको ये श्राप दे दिया गया था, तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, यह श्राप दिया था। तो नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे, सारा दिन चलते फिरते ही रहते थे। न चल करके बाकी लोग भी हैं, मैं उसे देखता हूँ, सुतल लोक, ततल लोक, बीतल लोक, पाताल लोक, इन लोकों में उनका घूमने का मन किया कि मैं यहाँ सब जो है चलता हूँ, घूमता हूँ। तो बाकी लोकों में जब वो प्रवेश किए तो वहाँ देखते हैं कि ये जो किसी सुखी हैं, तो नारद जी भी वहाँ पर जो है बहुत प्रसन्न हो गए। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते हो आप लोग? नवनीत ये मक्खन यार जो ब्रेड में लगा के खाते हुए कितना कोमल होता है जो है, बहुत उसे हीट थोड़ा सा दिखाओ पिघल जाता है। वैसे संत का हृदय जो बड़ा कोमल होता है वो तुरंत किसी को दुखी देखता है ना तो भी पिघल जाता है दुख में, और किसी को सुखी देखता है तो सुख में भी पिघल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नारद जी संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय जो है मक्खन के सरीखे रहता है। जो नारद जी वहां पर बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के वो घूमते घूमते क्या हुआ कि पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागता। वो घूमते घूमते नारद जी जो है पर्यटन करते करते मृत्यु लोकम उपागता, मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में देखते हैं आकर के वो कि ततो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। यहाँ पर हर लोग अनेक नाना योनि, अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के लोग सभी दुखी हैं, कोई भी आदमी वहाँ सुखी नहीं है। अब तो अपने माता को क्या कह रहे हैं कि हन्यामह मिमाम पापाम कैकेयीम दुष्ट चारिणीम। इस दुष्ट कैकेयी को, दुष्ट चारिणी कैकेयी को मैं मार डालता अगर भगवान राम मुझे इजाजत दे देते तो तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर के उनको समझाया भरत जी को कि भरत जी काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भुगतने आते हैं। भगवान राम भी अपने कर्मों का फल ही भुगतने के लिए गए हुए। कहते हैं कि वहां पे लोग जो दुखी हैं मृत्युलोक के प्राणी स्वकर्म भी। अब नारद जी जब देखे कि यहाँ मृत्युलोक के प्राणी तो अनेक प्रकार से दुखी हैं, किसी को घर, किसी को कपड़ा नहीं, किसी को पानी नहीं, किसी को अन्न जल नहीं, तो इसी कोई रोगी, कोई लूला, कोई लंगड़ा, इस प्रकार से जब दुखी देखे तो नारद जी जो है चिंतित हो गए। और नारद जी जब चिंतित हो गए तो मन में अपने विचार करने लगे कि केनो पायन चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम। इनका दुख किस प्रकार से नाश होगा, दुख किस प्रकार से दूर होगा। नारद जी के मन में ऐसा विचार आया। संत का यही लक्षण है, संत हमेशा परोपकार की भावना रखता है, वो दूसरे के दुख को दूर करने की हमेशा उसकी चेष्टा रहती है। तो केनो पायन चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम इति संचिंत्य मनसा, मन में ऐसा विचार करते हुए विष्णुलोकम गतस्तदा, विष्णुलोक को चले गए। वो फिर मृत्युलोक में भ्रमण नहीं किया उन्होंने, विष्णुलोकम गतस्तदा। नारद जी आज विष्णुलोक में पधारे हुए हैं। नारद जी कभी भी ब्रह्मलोक में, सुलोक में, विष्णुलोक में कभी जाते ही नहीं थे। कर्मयोग इसे कहते हैं। कर्म तो करोगे आप ना, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कर्म कर रहे हो आप, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। लेकिन सत्कर्म जिसे कर्मयोग कहते हैं ना, वो है उसमें आपको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर का सानिध्य जुड़ा हुआ है। सत्कर्म करते रहो और काम भी करते रहो, अपना कर्म भी करते रहो। अर्जुन युद्ध भी लड़ते रहो और भगवान का नाम भी लेते रहो, यह है सत्कर्म। इसमें असफलता कभी नहीं मिलेगी। तो ये जो है वहां से फिर नारद जी के मन में आया कि ये व्रत करने का इसका फल क्या होगा। अरे भाई आप परीक्षा देते हैं
उसमें जो है सफलता के लिए सोचते हैं, इसका फल क्या मिलेगा। आप संशय आपको बना रहता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप संशय में, संदेह में बने रहते हैं, इसका फल क्या मिलेगा मुझे जो। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि ये व्रत तो रहेंगे सत्यनारायण का, पर इसका व्रत, इसका फल क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसका फल ये होगा कि मनुष्य का तत्काल दुख दूर हो जाएगा और जब तक वो इस पृथ्वी पर रहेंगे सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चले जाएंगे, ये इसका फल है। फिर किम फलम किम विधानम च, कहते हैं इसकी फिर विधि क्या है करने की, कोई तरीका होता है सब चीज काम करने का ना, क्रमशः सीरियल बाय सीरियल जो है। कहते हैं कि इसका विधान क्या है, तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए इसमें गौरी गणेश का पूजन करिए, कलश का ब्राह्मण बुलाइए, कलश का पूजन होता है, नवग्रह का पूजन होता है जो है, और भाई बंधुओं के साथ भगवान की आरती करिए जो है, और प्रसाद ग्रहण करो, और हो सके तो रात में संकीर्तन भी करो, जागरण करो, और बाद में प्रसाद लेकर के भगवान का नाम लेते हुए अपने अपने घर को लोग चले जाएं, यही इसका विधान है। और कहते हैं किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्वर्तम, और इसको करना किस दिन चाहिए जो है। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे जो है ला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। एक दिन भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने ब्राह्मण से को प्रणाम किया, और प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि आप नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। देखिए ईश्वर को सब कुछ पता है, ईश्वर का लोग हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, व्यापक है, सर्वत्र है, विराजमान है, कण कण में है। तो अगर ईश्वर कण कण में है, विराजमान है, सब जगह व्यापक है, व्यापक का मतलब कि कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है जहां वो ना हो। तो इसका मतलब कि ये भी हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान की नजर यहाँ पे है, देख रहे हैं। एक ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांग रहा है तो भगवान की नजर उस पर भी है। वैसे तो कहते हैं कि आज भी मथुरा वृंदावन में एक स्वर निकलता है, उसको लोगों को रात्रि में, कि एक संत हैं ऐसे भी जो वृक्ष से निकलता है आवाज, कि वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के सामने से 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला के, हर दिन 24 घंटे में भगवान एक बार हर इंसान के सामने से निकल जाते हैं। हर दिन प्रत्येक दिन भगवान जो है आपके सामने से निकलते हैं, पर वो किस रूप में निकलेंगे वह समझने की आपको जरूरत है। भगवान मनुष्य रूप में निकल सकते हैं, ब्राह्मण के रूप में निकल सकते हैं, चोर डकैत के रूप में निकल सकते हैं, साधु संत महात्मा के रूप में भी आपके सामने से निकल जाएंगे, कुत्ते बिल्ली के रूप में भी आपके सामने से निकल जाएंगे, लूले लंगड़े अपाहिज के रूप में निकल जाएंगे। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि किसी का भी अपमान कभी मत करना, ना मालूम किस रूप में भगवान तुम्हारे सामने से निकल रहे हैं, गुजर जाएंगे। तो जो है ये इस प्रकार है। तो ब्राह्मण से उन्होंने पूछा, तो ब्राह्मण ने उपाय बताया। ब्राह्मण ने कहा कि अगर हमारी गरीबी दूर करने के उपाय कोई आप जानते हो तो बतलाइए। भगवान ने उन्हें कहा कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो जो कुछ उन्होंने नारद जी को वृत्तांत बताया था ना, वो भी भगवान ने जो है उस ब्राह्मण को बता करके अंतर्ध्यान हो गए, और ब्राह्मण ने भी सत्यनारायण भगवान का कथा किया, व्रत किया, और तब से वो भी इस पृथ्वी पे जब तक रहा सुख हो करके अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। इसके बाद एक लकड़हारे ने भी इस कथा को श्रवण किया था। 5 अध्याय में दूसरा अध्याय बता रहे हैं कि लकड़हारा भी एक दिन वो ब्राह्मण नित्य व्रत नियम अपना बनाए हुए थे, हर पूर्णिमा को व्रत करते थे। तो लकड़हारे ने भी देखा कि यहाँ कोई व्रत हो रहा है, उस ब्राह्मण से आके प्रसाद लिया उन्होंने और प्रश्न किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि जो है हम गरीब ब्राह्मण थे और इस प्रकार से जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, इसको करने से ऐसा फल मिलता है। लकड़हारे ने भी सोचा कि आज मुझे भी जो कुछ लकड़ी बेचने से मिलेगा मैं भी जो है सामान ला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। उसने भी जो है उस दिन लकड़ी बेचने से जो कुछ उससे मिला ला करके वो भी सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, और जब तक इस पृथ्वी पे था वह तब तक सुख भोग करके अंत में वो भी वैकुंठ लोक को चला गया। तीसरे अध्याय में आती है कि एक तुंगध्वज राजा थे। पहले राजा लोग ही इस पृथ्वी पे जो है राज्य करते थे। उनका नियम था नित्य प्रति देवालय में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, सपत्नीक, और अपनी प्रजा के बीच में घूमते थे, किसी का कोई दुख है सुख है उसको जानकारी करते थे, और फिर अपने महल में आते थे। उन्हें संतान नहीं थी। एक दिन वो भी सपत्नीक समुद्र के किनारे अपनी पत्नी को लेकर के आए, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, और उसी रास्ते से व्यापार करने के लिए एक वैश्य जो है नौका में धन संपत्ति लेके जा रहा था। उसने भी राजा से आकर के प्रश्न किया वहां पे कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे संतान नहीं है, और इसको श्रवण करने से, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मुझे अवश्य संतान होगी। वैश्य के मन में आया कि ये अगर ये इतने बड़े महान राजा हैं, इनके मन में ऐसा विश्वास है इस व्रत को करने से संतान उत्पत्ति होगी भगवान की कृपा से, तो हमें भी संतान नहीं, मैं भी जब व्यापार करके जाऊंगा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। वो भी अपने मन में ऐसा विचार किया, क्योंकि यद्यत आचरण श्रेष्ठ तत्त देव तरोजना, बड़े लोग जो जो आचरण करते हैं छोटे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वैश्य यह सोच करके कि राजा इतने बड़े होकर के ये कर रहे हैं, तो वो भी अपने मन में किया विचार। आपको देरी नहीं हो रही, बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। तो कभी कभी कोई काम कोई नहीं कर रहा है ना, सिगरेट कोई कभी नहीं पी रहा है ना,
वो देखते देखते कभी ये सोचे कि चलो अरे मैं भी देखता हूँ आज इसे पी करके इसका स्वाद क्या है। तो राजा के मन में भी ऐसा विचार आया होगा। तो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो रोज रोज पाप करता है ना, भगवान उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो कहते हैं कि आओ, कहाँ जाओगे तुम, पाप करके आओगे तो अंत में मेरे ही पास, तुम्हें उस समय तुम्हारा फैसला किया जाएगा, फल मिल जाएगा। और जो कभी नहीं करता ना, भगवान उसकी तरफ भी नहीं देखते, और देखते हैं तो जब वो कभी पाप करता है तब देखते हैं। अब वो राजा के मन में एक दिन ऐसा विचार आया, एकदा सा वनम गत्वा, ऐसा शास्त्र में लिखा पुराण में कि मतलब राजा कभी नहीं जाते थे, एक बार गए हैं। वो वन में चले गए, उनको शौक आई, और उन्होंने भी सारे दिन पशु पक्षियों का वध किया। पशु पक्षियों का वध करके जब वापस लौटे, बीच रास्ते में विश्राम करने के लिए, तो वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां पर राजा विश्राम करने के लिए तो उतरे, लेकिन ना गत्वा ना ननामसा, ना वहां पर जहाँ कथा हो रही थी कुछ दूरी बैठे, ना कथा के नजदीक गए और ना ही भगवान को प्रणाम किया। और जब कथा सुनने वाले जब उनके पास प्रसाद ले गए तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं किए। प्रसादम त्यक्त्वा दुखी हुए, तो प्रसाद को छोड़ करके घोड़े पे सवार होकर के अपने महल को चले गए, इसलिए बहुत दुखी हुई। जब महाराजा अपने महल के घोड़े पे सवार होकर के पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि उनके भी 100 पुत्र थे, सब मरे पड़े हैं। घोड़े हाथी राजा लोग हजारों की तादाद में पालते थे, पशु पक्षी ये सब पालते थे, आदमी की कमी नहीं होती, सब सेवा लगे रहते, हाथी घोड़े ये सब मरे पड़े हैं। ये उनके पाप का फल उन्हें मिल गया, तुरंत शास करा दिया भगवान। ये सब मरे पड़े हैं ना, ऐसा लोगों को समझ में आता क्या सचमुच मर गए? ऐसा मरते नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं, उनको एहसास कराते हैं। जैसे कोई मनुष्य कहीं गिर जाए ना, थोड़ी देर के लिए उसे उसकी चेतना जो है साइड में हो जाती है, उसे बेहोश हो जाता है ना, अचेतन प्राणी हो जाता है जो, उतना वो करते हैं उसे कि वो जो है चेतना विहीन हो जाता है, उसके कहते हैं कि वो सब मरे पड़े हुए। राजा भी मूर्छित होकर के पृथ्वी पे घोड़े से गिर पड़ा, लेकिन भगवान ने उसको चेतना दिया, उनको याद दिलाया कि तुम कभी नहीं गलती करते थे, आज गलती कर गए। वो एहसास कराया तो राजा को चेतना जागृति हुई, राजा को एहसास हुआ कि मैं कभी गलती नहीं करता था। उसने फिर घोड़े पे बैठा और जहाँ कथा हो रही थी वहां पे गया, वहां प्रसाद लिया, भगवान का कथा श्रवण किया और जो है फिर लौट करके आया। उसके सारे जो है पशु पक्षी संतानें सब जीवित मिले, और राजा भी इस सत्यनारायण भगवान का व्रत करके जब तक इस पृथ्वी पे थे तब तक सुख भोग करके अंत में वो भी बैकुंठ लोक को चले गए। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन अद्भुत छविराज, स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निरांजन, नारद करत कांजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनिके, बूढ़ो ब्राह्मण बनिके, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो
प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भगति करी, स्वामी बन में भगति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम कपूर जला लो, परिक्रमा कर लो। इसे कपूर डाल के एक बार घूम जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जलेन सिंच देवाभिवंदनम स्वात्मानं वंदनम आरार्तिक्यं मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप सामने खड़े हो, शुरू करते हैं। फिर आरती उनको दिखाने तो आप सामने खड़े हो, यहीं खड़े हो। रुको रुको भाई, भैया होने दो। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः। सार्वायुषयान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया
एकराडितदप्येखश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नगजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नीचे रख दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। गणेश भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।